Students who haven't studied this subject at their school level or even at their college level, I would suggest it to them that they please study the old NCERTs as well as the new NCERTs to understand a basic background of the subject, and this will help you further when you go for in-depth readings. Once you are through with these basic texts, that is the old and the new NCERTs, I would suggest you go for the in-depth books. Now, these in-depth books include the following, and this is my basic book list that I followed when I was studying history as my option. First and foremost, for ancient India, I referred to a history of ancient and early medieval India by Professor Rupinder Singh. For medieval India, I referred to Medieval India by Satish Chandra. For modern India, I referred to From Plassey to Partition by Shekhar Bandyopadhyay. For world history, I referred to Norman Lowe, Jain and Mathur, as well as selfstudyhistory.com's notes on world history. Thereafter, I had some supplementary sources as well. These included the IGNOU BA notes as well as my own graduation notes. Here, I would like to sound a word of caution. When I recommend all these books, I don't mean to say that you have to read them from cover to cover. Rather, you should be focusing on selectively reading it so as to optimize your preparation. Now, I'd like to discuss note making. Your own handwritten notes are extremely important for this option. So what you have to do is firstly go through the syllabus on your own properly. If possible, kindly stick it on the wall wherever you're studying so that you can look at it again and again and refer to it time and again. Beyond that, I would also ask you to look at the past year question papers. Don't go beyond 5 or 6 years, past 5 or 6 years. And then once you put these two together, you will be able to understand the demand of the history optional and you'll be able to make your own handwritten notes properly. When you're basically making notes, I would suggest that you focus on historiography. Now, historiography is basically the study of writing of history. And history as a discipline has changed from being a simple narrative of the past. It now involves an understanding of and a critical analysis of the processes of continuity and change that have taken place in the sphere of economy, polity, society, etc. Therefore, your answer also needs to start reflecting that, and you should incorporate the viewpoints of the various historians that you will read when you're studying history as an option. And you should cite them wherever possible to add a sort of X factor to your answer and to make it stand out from the rest. While you're improving the quality of your answers, you can also cite archaeological and literary evidence. This again will show that you've done your readings and will impress the examiner and enable you to score really well in this paper. Another important aspect of history as an optional is map work. Now, if you're looking for a good source for maps, I would suggest you go through selfstudyhistory.com's collection of maps. They're quite comprehensive and they fulfill the demands of the UPSC examination. You should start practicing maps from the beginning of your preparation. Take about 30 minutes every day and mark 5 to 6 places on the map. And then write 30 to 40 words about each of these places. After you're done with the basic list, then you can go back to revising them whenever the exams are close by. After this, I'd like to move on to answer writing. So once you're through with the syllabus, I would suggest you begin answer writing practice. If you want, you can begin answer writing practice at home itself. There are a lot of compilations of past year papers that are available and you can refer to them and begin practicing answers, writing them at home. Once you feel a little more confident of yourself, then you can go for test series. I took up 2 test series for history optional, one from GS Core and another from selfstudyhistory.com. Taking at least 2 test series for your optional or for any other paper, for instance your mains as well as your prelims, is extremely important because you understand the kind of questions that UPSC can ask as well as the wide variety of questions that can be asked in your paper. This will prepare you to tackle the questions when you face them in an examination setting. So that was my basic strategy for history as an option. Feel free to pick or discard, aspects of my strategy according to your needs. And you can even reach out to me on Quora or Instagram. I'm available and I would respond to your queries as far as possible and as soon as I can. I have a blog as well where I've detailed various aspects of my preparation strategy. If you look at the history paper as such, there are 2 modules, there are 2 papers, paper 1, paper 2. Each paper will have 2 modules. So in paper 1 we have ancient and medieval India,
and in second paper we have modern and world history. So you will have these 4 modules to study. Everything is in chronological order, so you will find it easy to study. My first suggestion would be have one module strong in one paper. So if you are solving paper 1, either ancient or medieval should be strong. If you are solving paper 2, then either modern or world history, either of these two should be strong. So have one module per paper to be strong, so that you can attempt 3 questions for that and the 2 questions for the weaker module. So have one module whose study is quite good. The second suggestion for history that I will say is that the sources are quite many, but ensure that you have 2 to 3 sources maximum for one module. So I'll now start with the sources that we have for history. Let's start with ancient. For ancient, the old NCERT of R.S. Sharma is the basis of all study for all modules, of course, but the old NCERTs are basic. So R.S. Sharma old NCERT, you can read BA IGNOU for ancient India. That will also give you a lot of fact base. And of course, Upinder Singh is there is no exception for that book. Upinder Singh has to be read. It's a big book, but it will ensure that a lot of things are clarified and you will get good clarity on ancient India. For medieval, Satish Chandra's old NCERT, there are 2. One is for Delhi Sultanate and one is for Mughal times. Those 2 are important. Similarly, BA IGNOU notes for the Delhi Sultanate and Mughal India, they are important. And the third volume of J.L. Mehta's book, because it deals with culture and other miscellaneous aspects. For modern India, again Bipin Chandra's NCERT for modern India, the old one, it is the basic one for it. Shekhar Bandyopadhyay's From Plassey to Partition, that book is very good for historiographic views, so views of various historians. That is something very, very important in that. You can get it from that book. And for certain basic facts, Grover and Grover. These 3 books are quite good. For world history, Ranjan Chakravarti's book is very, very good to establish a base for various events that happened in world history. As well as Norman and Love is very good for First World War and post those events till Cold War phase. So these 2 books are quite good for world history. Apart from this, there are many established notes of various classes. You can pick up one source of notes and you can use them for value addition. But again, those notes are for value addition. They are not a substitute for basic sources. So after you read your basic sources, only then the standard notes of various classes are to be used for value addition. Now, notes preparation. In history, there is no alternative for notes preparation. You have to prepare your own notes, because you read, say, let's say ancient. You will find one good thing in IGNOU, you will find one good thing in Upinder Singh. Now, if you just underline it there and there itself before the exam, you will find it very, very difficult to read it, because there is no coherence. You will read one thing here, one thing there, your brain will not remember it. So, compiling all these things together and making it into one note is very, very important. So, note making is extremely critical. Notes of history are going to be big, I understand, but that is the laborious task that you should be doing. Studying of history will require about 6 to 8 months compulsory. So, ensure that you give that much of time and prepare notes. While you prepare notes, what are the things to be understood? First, there should be 10:1 ratio. So, if a book is of 100 pages, 10 pages should be the notes, not more than that. So, while reading Upinder Singh, you should not end up creating another Upinder Singh for yourself. That is stupidity. So, you should have compressed notes, crisp notes, make them in bullet points. Secondly, for ancient and medieval times, sources become very, very important. So, archaeology, epigraphy, numismatics, literature, these are very, very important sources, because in the exam, if you write generic statements, you are not going to get marks. You have to write specific things with quoting various sources. So, they are very, very important. The second thing to be kept in mind while preparing notes is ensure you have views of various historians embedded in your notes, and ensure that you revise those notes, and when the question comes in the exam, you will find that those sources and those views of historians will automatically come into your answer, because they are there in your notes. So, sources and views of historians become very, very critical for ancient and medieval notes. For modern and world, sources are not important, because nobody is going to ask you to prove that civil disobedience movement happened. It is a done and dusted conclusion that it did happen. What is expected in modern and world history is about the analysis of those events. Why did it happen? Why did it end? Who are the people involved? Are there any other aspects to that entire event? That is the analytical mindset that is required for modern and world. So, while preparing notes for modern and world history, ensure that the chronology of events is done very perfect, and the views of various historians about what things happened,
many quotes are available for modern and world of contemporary people. So if you are talking of Gandhiji's Satyagraha, Gandhiji's own writings in his paper Young India and Hind Swaraj become very, very important sources. So that was an example. So contemporary people's quotes become very, very important. Like for example, if there is a question asked on Government of India Act 1935. Now I know that Jawaharlal Nehru himself said that this Government of India Act 1935 is it's like a car with all brakes and no engine. If you start your answer with this quote, the examiner knows that you know the subject, you know what you are writing. So many times these quotes become very good things to put up in the introduction or conclusion of your answer. So quotes, views of historians and chronology of events, analysis of those events becomes very important while preparing those notes. So ensure your notes have these stuff. If we go to the answer writing, I suggest that in the answer writing stuff, when your questions come 20 marks, 15 marks, 10 markers, ensure that time planning is very, very important, because again in the optional paper you have very, very less time. So it was my general strategy that 10 marker question should be solved in 7 minutes, 15 marker question in 12 minutes and 20 marker question in 15 minutes. That is the rough time frame in which you should solve the question, and you will realize that all these it will all add up to 180 minutes. So 10 marker question 7 minutes, 15 marker question 10 minutes and 20 marker question 15 minutes. Second thing, whenever the question comes up, ensure that you have some classic introduction and conclusion, because that is the highlight of your answer. So good quote, some basic definition, and in the conclusion also ensure that you connect it to something wide. So if you are talking of say women's reform movement in 19th century, this is modern India, about how sati and widow remarriage and all these things are happening. If in the conclusion you are able to write that it is these reform movements in 19th century that created the base for active participation of women in the freedom struggle in 20th century, and also for the various reforms that Indian constitution had in 1947. Now I am connecting that issue to something large. So ensure that your conclusions are very, very it will tell the examiner that this person does not study history in silos, but he studies it in broad concept. If the answer comes about Akbar as a nation builder, I can always say in the conclusion that India as a nation has many builders. If Akbar is a nation builder, then so is Ashoka. Hence, Akbar is a nation builder, but one of the nation builders. Now that's a very good conclusion. You are just giving a perspective to that examiner. So ensure that you develop good perspective about what history is. Ensure that you don't study ancient, medieval, modern and world in silos. That is stupidity. If you are able to interconnect it, the examiner will always like it. Third thing, while answer writing, facts are very, very important. If you see a building, there is a foundation. Without a foundation, a building cannot stand. So the building of history cannot stand without facts. So let us be very, very clear that facts are very, very critical. Let me give you an example. Most people complain that history gives average marks because you write average stuff in the exam. For example, if I claim that Ashoka ran a welfare state, now that's an average statement. Everybody knows it. There is nothing wrong in it, so examiner won't cut marks. But then he will not give you more marks also. The moment I write that the Girnar rock edict of Ashoka, where he says, Sabba Paja Mama Putte, all people are my children, and hence Ashoka ran a welfare state. Now you are being very, very specific. So examiner knows that you have studied stuff, you know the facts, and now there is no scope left for the examiner to cut your marks. So ensure that you are very specific in what you are writing. It becomes very, very important. So fact base is very important while you are writing anything in the answers. Many people go on writing theoretical stuff in the examination and they just expand which is not asked. So relevance of the question is very important. If they are asking you about certain stuff, note the keywords. If they are asking for critical analysis, ensure that you give analysis from both the sides. These are some basic tips for answer writing. While preparing, ensure it's a very standard instruction from my side that before you go to the prelims, your optional should be complete. If the worst case may be, keep some GS stuff pending, if at all the time may be. Of course, everything should be complete before prelims, but in a very practical world, if at all something remains, keep it for GS, not for optional, because optional is a detailed study. After prelims, there is so much pressure on you for prelims, mains, for the main stuff, GS bhi likhna hai, essay bhi likhna hai, everything, that your brain will not accept any new information from optional because it is very, very deep. So ensure that you finish your optional prior to the prelims, so that after optional you will only look at your notes, you will look at your notes, revise, and you will be very, very comfortable in that. So these are some basic tips for
optional that I will always give. History optional is challenging because there are too much of facts, you have to remember a lot stuff. So the last and the most important suggestion, do not sit for a paper without revision. There is no shortcut for history optional. After prelims, there has to be at least 3 revisions for history optional. Most people keep on reading till 1 month prior to the mains, and thus they don't, at the end of the day, they don't remember anything. If you have to remember so many facts, you have to read it also. So after prelims, ensure that your notes are so crisp that you will require 2 days for one module. So my personal revision schedule was 8 days. 2 days for one module, ancient, medieval, modern world. Those were the crisp, that was the crispness of my notes, that in 2 days I have to revise, and in 8 entire days my entire optional syllabus was revised. And one revision per month, you get about 3.5 months for between prelims and mains. So 8 days per month and your optional syllabus is revised, and then you can indulge yourself in answer writing and revision for the GS. And the last thing that I will focus on is the map, because that's a very, very critical thing in the first part of the paper 1. There are about 200 to 250 sites, important ones. What I had done was, I bought a map of India without state boundaries, a blank map, and I prepared section wise maps. So one for Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, Megalithic, Harappa, Vedic age, Buddhist sites, port cities, important towns, and some miscellaneous sites. So these are various kinds of classifications that generally come up in the question paper. So I prepared maps for each of them. What I did was, I just mapped 1, 2, 3, 4 on the map. I did not write the name on the map, because your brain has to be trained to guess that site. So I wrote the number on the map, and on the flip side of it, I wrote 1, 2, 3, 4 and the names in front of it. It becomes easy for revision. I'll look at the map, I'll look at one, I'll try to remember that, okay, this is that site, and then just flip it and confirm it. So that is the way of revision. And after that map, just staple 2-3 pages where you will write 30 word description of that site, because that is also needed in the question paper. So if I say I have a map for Paleolithic sites, I'll have a map, I'll have some 30-40 sites marked on it, numbers. On the flip side of the map, I will have the names of the sites along with the numbers, and then I have 2-3 papers attached to it where I have 30 word description for each site. And even that stuff has to be revised 3-4 times, because you have to remember it at the last moment which site is what. So prepare such maps in sections and ensure that you do it quite before the prelims, because after the prelims you will not have time. So that is the basic study used for history optional. बात करते ऑप्शनल के बारे में. तो ऑप्शनल के बारे में क्या है, सबसे पहला कि ऑप्शनल हिस्ट्री, मेरा हिस्ट्री था, तो मैंने हिस्ट्री क्यों चूज़ किया. देखिए, व्हेन आई वाज इन दिल्ली 2015 में, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, और इस इंस्टीट्यूट में जो जाती थी, वहाँ पे मेरी एक क्लासमेट थी नेहा, और उनका ऑप्शनल था हिस्ट्री. तो वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड शी वुड ऑफन डिस्कस कि हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग, ऐसे ऐसे करके, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग. शी मेड हिस्ट्री लुक लाइक वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. तो मैंने क्या किया कि खुद से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंशिएंट हिस्ट्री की, ओल्ड एनसीईआरटी, मेडिवल की सतीश चंद्रा, और जो भी बुक्स हैं बेसिक जीएस लेवल की जो बुक्स होती है, ऑप्शनल की नहीं, जीएस लेवल की. तो वो मैंने जब पढ़ी ना, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी वो. और ऐसे ऐसे करके जब 1 साल मेरा बीत गया वहाँ पे, तो मेरे को क्या दिखा कि एंशिएंट के मेरे नोट्स बन गए एनसीईआरटी के पूरे, और मैंने मेडिवल भी पढ़ ली. उसके बाद मैंने मॉडर्न इंडिया तो मेरी लगभग हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है जीएस में और ऑप्शनल वाला जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है. स्पेक्ट्रम ही मैंने यूज़ की थी प्लासी टू पार्टीशन के अलावा अपने ऑप्शनल के लिए भी. तो एक ये चीज़ थी इंटरेस्ट. दूसरी चीज़, सिलेबस कंप्लीट हो गया था काफ़ी. तीसरी चीज़ क्या थी, हिस्ट्री का क्या फ़ायदा है. देखिए, एस्से में नंबर 1, एस्से में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. दूसरी चीज़ ये होती है कि जो जीएस के पेपर्स हैं, लाइक दिस ईयर वी हैड अ क्वेश्चन जीएस 3 में और जीएस 2 में सॉरी क्वेश्चन था डेवलपमेंटल इंडस्ट्री के बारे में, कुछ डेवलपमेंटल सेक्टर के बारे में कुछ था. तो इंडिया के डेवलपमेंटल डिस्कोर्स पे बताना था और कोलैबोरेशन बिटवीन द सेक्टर्स बताना था. तो मैंने वहाँ पे, क्योंकि इसकी क्वेश्चन की ना कई सारी इंटरप्रिटेशन होती है, ये क्वेश्चन था जीएस 2 में जिसमें सोशल जस्टिस, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब होता है. तो वहाँ पे जब मैंने डेवलपमेंटल डिस्कोर्स की बात आई ना, मैंने बॉम्बे प्लान को कोट कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर का मिनिमम रोल और गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा रोल, और अब कैसे चेंज हो रहा है वो. अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और एनजीओज़ हैं, ये सब है. तो वो कैसे आ रहे हैं, तो एक हिस्टोरिकल जो उसका बैकग्राउंड है वो दे देना. नंबर 1,
कि जीएस में भी आपको ये हेल्प कर देता है। नंबर 1 चीज़ मैं बताऊं कि जीएस में कैसे हेल्प करता है, तो मैंने क्वेश्चन का एक आपको एग्जांपल दे दिया। दूसरी चीज़, जीएस 1 की जो सिलेबस है उसमें 85% सिलेबस जो आता है, 85% क्वेश्चन जो आते हैं वो हिस्ट्री के ही तो आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें है, मॉडर्न इंडिया है, आर्ट एंड कल्चर है, मेडिवल भी है, तो ये सब आपको कंपल्सरीली कवर करना होता है। तो मैं अपना सिर्फ एफर्ट सेव कर रही थी कि अगर मैं जीएस 1 के लिए तो हिस्ट्री पढ़ ही रही हूँ, क्यों ना ऑप्शनल में इतना कवर कर लिया जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो मैंने प्रिपरेशन करी अब की बार जीएस 1 में, हिस्ट्री के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं की, ऑप्शनल का ही जो मैंने प्रिपेयर किया था वही मैंने फिर हिस्ट्री के लिए भी यूज़ कर लिया। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट द बुक्स कि अब हिस्ट्री ऑप्शनल है, बुक्स कौन कौन सी हैं। देखिए, पेपर वाइज डिवाइड करेंगे, पेपर 1 में और पेपर 2 में। अब पेपर 1 में आपके होते हैं एंशंट और मिडीवल, ठीक है। अब एंशंट में क्या है, एंशंट मुझे काफ़ी टफ लगती थी पर्सनली, तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। मैप तो देखो कंपलसरी होता ही है, उसके अलावा मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन इससे करूँगी एंशंट हिस्ट्री में। तो सबसे पहले जो मैप का क्वेश्चन है उसको मैंने कैसे हैंडल किया था, देखिए 2017 में ना मैं पहले लिख चुकी थी मेंस में, और मेंस लिख चुकी थी पहले, तो हिस्ट्री में मेरा स्कोर था उस साल 255। अब वो स्कोर 255 लाने के लिए जो मैंने प्रिपरेशन की थी, नोट्स तो मेरे बन चुके थे। फिर मैंने बालियान सर की टेस्ट सीरीज़ की। जब मैंने बालियान सर की टेस्ट सीरीज़ की तो मैंने साथ साथ में अपने जो मेरा रहता था ना, जो सिलेबस रहता था उसके भी मैंने नोट्स बना लिए। अब ये चीज़ की, नोट्स बन गए मेरे, टेस्ट सीरीज़ ले ली, आंसर लिखने का पता चल गया कि कैसे लिखते हैं, बट फिर भी कुछ ना सिलेबस रह गया। जैसे अपने कुछ ये हैं, इमैनुअल कांट वाला एक टॉपिक है, रोश्यू वाला है, तो ये चीज़ें बुक में नहीं थी उस टाइम पे। बुक में थी भी इतनी, मतलब एग्ज़ाम लाइक जैसे एग्ज़ाम में चाहिए ना कंटेंट, वैसे नहीं थी, तो मैंने वो छोड़ दिया। पेपर में क्वेश्चन आ गया तो वो मेरा छूट गया, काफ़ी पेपर छूटा इस तरह से। यही रीज़न था कि काफ़ी जो पोर्शन था सिलेबस का वो अनकवर्ड था, और तो फिर ऐसा हुआ कि पेपर छूटा। इवन देन आई कुड स्कोर 255, लेकिन वो अटेम्प्ट मेरे को ऐसे हेल्प किया कि मेरे नोट्स सारे बन गए थे, टेस्ट सीरीज़ मैंने ले ली थी, तो जो वो मटेरियल मेरा तैयार था 2017 से वो मैंने अब की बार ही यूज़ किया। उसमें मैप सेक्शन पे खासा एम्फेसिस करना चाहती हूँ। selfstudyhistory.com करके एक है वेबसाइट, उसमें से मैंने मैप की पूरा प्रिंट निकाल लिया था, उनको सॉर्ट आउट करके सारी साइट्स का। वो तो मेरा पहले से था। एक मैंने अब क्या किया, बुक लगा ली जीकेपी पब्लिकेशन की, जिसमें आप देख सकते हो अमेजोन से मैंने मंगाई थी। उसमें सारी साइट्स हैं, थोड़ा लोकेशन का इशू है, वो आप गूगल से चेक कर लीजिए, काउंटर मतलब वेरीफाई कर लीजिए कि लोकेशन सही है या नहीं। साइट्स उसमें सारी हैं। तीसरी ओल्ड एनसीईआरटी, जो मैंने 2017 में जब प्रिपरेशन करी थी तभी मैंने ओल्ड एनसीईआरटी से भी जो एंशिएंट किया है वहाँ से साइट्स निकाली थी। और एक जीएस कोर की, क्योंकि मैंने इस साल टेस्ट सीरीज़ की थी तो उन्होंने भी अपने मैप का मटेरियल दिया हुआ था, वो सारा कंसोलिडेट करके मेरा मटेरियल मैंने बनाया था। और प्रीलिम्स हमारा जो जून में था, 2019 की बात कर रही हूँ मैंने फैब तक भी मैप सेक्शन की प्रैक्टिस की है, और प्रीलिम्स की बात तो की ही थी। तो ये तो आपका मैप सेक्शन हो गया। उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने किए थे, जैसे इंडो रोमन ट्रेड, फ्यूडलिज्म कर लिया, ब्रह्मदेय सिस्टम, और अशोका वाला कर लिया, बुद्धिज़्म वाला कर लिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो टॉपिक्स पे कंटेंट भी था और जो मुझे ठीक ठाक लग रहे थे कि आ सकते हैं एग्जाम में, मैंने एंशिएंट के लिए वही प्रिपेयर किए। बुक्स इसमें मैंने कौन सी की थी, एक तो देखिए पहले तो उपिंदर सिंह आपकी है, एक वो एंशिएंट ओल्ड एनसीईआरटी से मेरे नोट्स पहले बन चुके थे 2015 में वो। और इसके अलावा थोड़ा बहुत रेफरेंस मैंने लिया था बालियान सर के नोट्स में से, हैंड रिटन नोट्स मैंने जो उनके मार्केट में से लिए थे, लेकिन बहुत लिमिटेड किया था क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आई फाइंड एंशिएंट हिस्ट्री वेरी डिफ़िकल्ट। और इसमें जैसे सोर्सेज याद करने होते हैं, बहुत आपको डिटेल्ड स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो होती है, तो मैंने इन टॉपिक्स के लिए वो सब किया था, बाकी मैंने ज़्यादा नहीं किया। एंड आई गॉट लकी कि क्वेश्चन भी फ्यूडलिज्म, इंडो रोमन ट्रेड और बुद्धिज़्म इन्हीं पे आया था पेपर में। तो ये अपना एंशिएंट का सेक्शन हो गया। उसके बाद आपका जो सेकंड है दैट इज़ मेडिवल। मेडिवल में आई फॉलोड 2 सोर्सेज, वन इज सतीश चंद्रा जिसके मेरे पास नोट्स थे, और जो दूसरा था वो बालियान सर की मैंने रेफरेंसिंग की थी, टेस्ट सीरीज़ तो थी ही साथ में। उसके बाद बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 में आपके 3 होते हैं, एक है मॉडर्न इंडिया, उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड आफ्टर दैट यू हैव द पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो है उसमें मैंने बालियान सर के नोट से ही पूरा कवर किया था, ज़्यादा मैंने उस पर फोकस किया नहीं, और पेपर में मैंने कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस का अटेम्प्ट भी नहीं किया क्वेश्चन। फिर आपकी आती है मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ना मॉडर्न हिस्ट्री में बालियान सर के नोट्स तो मैंने रेफर किए ही थे, पिछले मेरे जो नोट्स थे। एक स्पेसिफिक बुक वो है प्लासी टू पार्टीशन। पहले स्पेक्ट्रम में भी हैं कुछ टॉपिक्स जो प्लासी टू पार्टीशन में नहीं है, या फिर बालियान सर के नोट्स में नहीं है, जैसे कि आपकी जो ट्राइबल कुछ अपराइजिंग्स हैं, पीजेंट अपराइजिंग्स है, ये सब ठीक है। ये
स्पेक्ट्रम में से मैंने कवर किए थे, प्लासीडो पार्टीशन हो गया। उसके बाद एक बुक आती है बिपिन चंद्रा, जो कि पहले मतलब इतनी इंपॉर्टेंट थी, पहले पढ़ते थे लोग, मैंने भी ली थी, बट मैंने वो काफ़ी मतलब मैंने इतनी फॉलो नहीं की, क्योंकि जो बिपिन चंद्रा वाली बुक है ना वो आपकी स्पेक्ट्रम में उसकी शॉर्ट फॉर्म करके दी हुई है, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो आपकी बिपिन चंद्रा ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाती है। और प्लासीडो पार्टीशन इज़ अ वेरी गुड बुक, उसके मैंने नोट्स भी बनाए थे। ये अपना मॉडर्न इंडिया के लिए था। एनालिसिस पार्ट जो है वो मैंने किया था बालियान सर के नोट्स में से, प्लस टेस्ट सीरीज तो की ही थी। उसके बाद आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक जो वर्ल्ड वॉर के पहले का जो पोर्शन है वो जैन एंड माथुर में है, और उसके बाद का जो है वो है नॉर्मन लॉव में। तो मैंने ऐसे ही इन दोनों में से किया था, जो मैंने बताया कि 2 डिविजन्स की थी। और कुछ एक जैसे इमैनुअल कांट और रोशू, इन सब के जो टॉपिक्स थे वो मैंने बालियान सर के नोट्स में से किए थे, और एनालिसिस के लिए भी उसको यूज़ किया था, प्लस टेस्ट सीरीज तो मैंने ली ही थी। मैंने हिस्ट्री के लिए इनिशियली जो है हेमंत झा सर की क्लासेस अटेंड की, लेकिन ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस मैं उन क्लासेस को कंप्लीट नहीं कर पाई। तो एक तरह से मेरा जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन है हिस्ट्री का वो खुद से ही रहा, सेल्फ प्रिपरेशन ही रहा, सेल्फ स्टडी के थ्रू। तो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जो बुक लिस्ट है कि मैंने कौन कौन से बुक्स जो हैं वो रेफ़र की थी हिस्ट्री की तैयारी में। तो सबसे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँगी। उसके लिए मैंने उपिंदर सिंह की जो प्राचीन भारत है उसे पढ़ा था। इसके अलावा आप जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि उसमें बेहतर तरीके से नहीं दिए हुए, उसके लिए आप इग्नू के बीए और एमए के नोट्स पढ़ सकते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री के लिए मैंने सतीश चंद्रा की किताब पढ़ी थी, और आधुनिक भारत के लिए मैंने शेखर बंदोपाध्याय की पलाशी से विभाजन तक और विपिन चंद्रा की किताब पढ़ी थी, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसके अलावा जो 1947 के बाद का जो हमारी हिस्ट्री है उसके लिए हम विपिन चंद्रा की किताब से सेलेक्टिव स्टडी जो हमारे टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी कोई बुक हिंदी में नहीं मिली, इसलिए मैंने नॉर्मन लॉ पढ़ा था वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। और वर्ल्ड वार के पहले की प्रिपरेशन जो है उसके लिए मैंने जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंगली इग्नू के थ्रू उसे पढ़ा था, या फिर मैं गूगल करती थी और उस तरह से उन टॉपिक्स को पढ़ा करती थी। तो बुक लिस्ट के अलावा अब मैं आपसे बात करूंगी कि जैसे जो हमारा सब लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, तो इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो मुझे ये लगता है कि हमें हिस्ट्री जो है एज एन पेपर तैयारी करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अभी से पिछले जो 35 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपीएससी के, एक बार उनका एनालिसिस करें। एक वेबसाइट है selfstudyhistory.com, उसमें जो है वो टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस 35 इयर्स में आए हुए हैं उनको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके दिया हुआ है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप उस वेबसाइट के थ्रू जाइए, आप जितने भी पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में टॉपिक वाइज आप उसे एक बार देखिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। वो है, पहला है कि इतिहास के स्रोत क्या होंगे, और दूसरा कि जो हिस्ट्रियोग्राफी है वो क्या होगी, यानी हिस्ट्री के जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इतिहासकारों ने किए हैं वो क्या होंगे। तो जब हम इतिहास की स्रोत की बात करते हैं तो उसमें 2 मेन सोर्सेज हमारे आते हैं। एक होता है हमारा लिटरेरी सोर्स और दूसरा होता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो मैंने जैसे पढ़ा था कि मैं हिस्ट्री के किसी भी पर्टिकुलर पीरियड को पढ़ने से पहले उसके हिस्टोरिकल सोर्सेज को अच्छे से पढ़ती थी कि जो फॉर एग्जांपल जैसे कि प्री हिस्ट्री हुई, तो प्री हिस्ट्री के लिए हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। प्रोटो हिस्ट्री के लिए भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही हैं, जो रिटन सोर्सेज हैं वो उसकी जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लेकिन जब हम हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री के कालखंड से आते हैं तो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं और हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। तो फिर अगर हम उसे टॉपिक वाइज अगर उनके थ्रू पढ़ें तो मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, और हम ये समझ पाते हैं कि जो डिफरेंट इतिहासकारों ने जो उनका इंटरप्रिटेशन किया हुआ है वो अलग अलग कैसे है। उदाहरण के लिए मैं सिलेबस के टॉपिक वाइज जाना चाहूँगी। जैसे हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो मौर्यन एम्पायर में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे जो अशोक के अभिलेख हैं वो हो गए,
और दो लिटरेरी सोर्सेज में इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे पास, एक मेगास्थनीज की इंडिका और दूसरा चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो ये 3 जो है हमारे सबसे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं इनको पढ़ने के। अब इसके आधार पर जो इतिहासकारों ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किए हैं, अगर हम उससे अच्छी तरीके से समझ लें तो मुझे लगता है कि फिर हम जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, उससे हम अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाते हैं। मैंने जैसे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की जो प्रिपरेशन करी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे जो हमारा पहला टॉपिक है जो जैसे वो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन और अभिलेख, मुद्रा शास्त्र और ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये समझना चाहिए कि जैसे पिछले कुछ सालों में अभिलेख से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि अभिलेख से किस तरीके से जो है इतिहास का पुनर्निर्माण होता है, या किस तरीके से अभिलेख जो है इतिहास के एक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। तो इस तरह के सवाल जो हैं हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं, तो जितने भी जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में जो मैप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मुझे लगता है कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री के लोकेशंस को जब हम मैप में लोकेट कर लेते हैं और उनके बारे में जब हम 2-3 लाइन के जो है पैराग्राफ्स जो है वो लिख लेते हैं, उसके एक नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और फिर उसके थ्रू जो है हमें हमारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाती है। तो मैंने यही किया था कि मैंने मैप जितने भी प्री हिस्टोरिक साइट्स होते थे या प्रोटो हिस्टोरिक साइट्स होते थे, मैं उन्हें मैप पे लोकेट कर दी थी। मैंने उनके बारे में 30 वर्ड्स के अराउंड जो है वो नोट्स लिखा हुआ था, और फिर उसे मैं यूज़ किया करती थी, उसे मैं याद किया करती थी, रिवाइज़ किया करती थी, एंड आई यूज़ दैट। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन हो जाती है। जो इंडस वैली सिविलाइज, जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई हमारी, तो हाल के दिनों में अगर हम इतिहास के पेपर को हम पढ़ें तो हम ये समझ पाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो एक उसके उद्भव से आते हैं कि उसका उद्भव कैसे हुआ था, उससे रिलेटेड जो है विभिन्न इतिहासकारों के जो विभिन्न मत है वो। इसके अलावा एक आता है कि उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो डिक्लाइन के बारे में 2 तरीके की थ्योरीज चलती है कि एक जो है कि एक आकस्मिक उसका डिक्लाइन हो गया, एक है कि नहीं ग्रेजुअली जो है क्रमिक रूप से उसका डिक्लाइन हुआ है, और फिर इसके संबंध में भी हिस्टोरियंस ने अपने अपने व्यूज़ दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो है हिस्टोरियंस के व्यूज़ को पढ़ें और उन्हें अपने आंसर में लिखें। इसके अलावा जैसे हमारे पास जैसे जो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास है, जैसे जो हमारा महापाषाण काल है, तो महापाषाण काल जो है वो हमारे दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए मुझे लगता है उपेंद्र सिंह की किताब में अच्छी जानकारी उपलब्ध करा रखी है। इसके अलावा आप चाहें तो इग्नू के नोट्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे सातवाहन हो गया या शक हो गए, तो इन सबों के लिए जैसे इस बार का जो प्रश्न था, हमारा इस बार का जो प्रश्न था वो सुंग शासकों पर था। तो सुंग शासकों के काल में किस तरीके से बौद्ध स्थापत्य कला और का विकास हुआ। तो इस तरीके के प्रश्न जो है मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम जैसे YouTube पे इग्नू के कुछ वीडियोस पढ़े हैं, तो अगर उसके थ्रू हम इन टॉपिक्स को कवर करें तो मुझे लगता है कि हम अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को समझ पाएंगे। तो क्योंकि कोई भी किसी भी किताब में कोई एक किताब जो है वो काफ़ी नहीं पढ़ती है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो टॉपिक्स आपको लगता है कि उसके बारे में किताब में कम दे रखा है, आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे थोड़ा इसके संबंध में और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं ऐसा किया करती थी कि मैं YouTube पे जो है इग्नू के कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और मैं उसके थ्रू जो है उन्हें पढ़ा करती थी। तो हम ये एक तरीका अपना सकते हैं। ठीक यही बात जैसे भक्ति काल है, तो भक्ति काल के संबंध में भी मुझे लगता है कि बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भक्ति काल से रिलेटेड और भक्ति संतों से संबंधित। तो ऐसे में बुक्स के अलावा जो है अगर हम YouTube पे उससे रिलेटेड वीडियो अगर इग्नू के देखते हैं तो वो हमारी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अगर मैं मध्यकालीन भारत की बात करूँ तो इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे हमारा जो पेपर 1 है या पेपर 2 है, तो पेपर 1 में हमारे एंशिएंट एंड मिडिएवल है और पेपर 2 में मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो हमें एक प्रिविलेज होता है कि इन दोनों में से आप पहले ही आप ये काम कर सकते हैं कि आप पहले ही अपने माइंड में मेकअप कर लें कि आपको 3 क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री के ही अटेम्प्ट करके आने हैं। तो इस तरीके से आप मेडिएवल हिस्ट्री को सेलेक्टिवली पढ़ पाइएगा। और अदरवाइज़ आपको लगता है कि नहीं मेडिएवल हिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो मैं मेडिएवल हिस्ट्री
को आप उस तरीके से प्रिपेयर करिए कि आप उसके 3 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो काम कर सकती है। और वैसे ही पेपर 2 में भी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने होंगे। तो ऐसे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सेलेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत के लिए मैंने सतीश चंद्रा की किताब पढ़ी थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि मध्यकालीन भारत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो इतिहास के स्रोत है जिसके थ्रू मध्यकालीन भारत के इतिहास की पूरी पुनर्रचना की गई है, एक बार आप उनके थ्रू जाइए। उससे बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि हमें कैसे जो है वो इतिहास जो है वो पूरा का पूरा लिखा गया है, क्या था, और एक अच्छा आंसर लिखने में वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सल्तनत कालीन जो हमारा इतिहास है उसके लिए हम जैसे मलफूज़ात पढ़ते हैं, मकतूबात पढ़ते हैं, या फिर तवारीख पढ़ते हैं या तबकात पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता होना चाहिए कि तबकात और तारीख़ क्या होती है। तारीख़ में एक पर्टिकुलर तारीख़ के शासकों की जानकारी जो है वो लिखी जाती थी हिस्ट्री लेखन में, और तबकात जो होता था उसमें जो है खंड वाइज विभिन्न शासकों का इतिहास लिखा जाता था। तो इस तरीके से जो है हमें अगर ये पता है तो फिर हम इन रेफरेंसेस को अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। और ऐसे भी जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार सीधे भी ये पूछ लिया जाता है कि तबकात नासिरी के बारे में पूछ लिया जाता है, या तारीख़ फ़िरोज़ा शाही से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इन सब के बारे में भी एक हमारा शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स जो है वो प्रिपेयर रहे। इसके बाद अगर मैं आधुनिक भारत की बात करूं, तो आधुनिक भारत में मुझे जो सबसे अच्छी किताब लगी थी वो शेखर बंदोपाध्याय की पलासी से विभाजन तक है। लेकिन अगेन अगर आपको लगता है कि आपको ये किताब पढ़ने से पहले किसी और किताब से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली विपिन चंद्रा की किताब पढ़िए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे आसान सरल भाषा में दी हुई है। वो किताब काफ़ी इंगेजिंग राइटिंग है। तो पहले आप इनिशियली उसको पढ़िए और उसके बाद आप पलासी से विभाजन तक आइए, क्योंकि जो सवालों के जो पैटर्न जो आ रहा है वो शेखर बंदोपाध्याय की किताब से काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो हम उन सवालों को टैकल कर पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक किताब है जो अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो 1947 के बाद का इतिहास है उसके लिए आप विपिन चंद्रा की किताब को सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। और यहाँ से मुझे लगता है विपिन चंद्रा की किताब से जैसे हमारे जीएस पेपर 1 में जो कम्युनलिज़म और रीजनलिज़म जैसे टॉपिक्स दे रखे हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मैंने अपना कम्युनलिज़म और रीजनलिज़म जैसे टॉपिक्स जो हैं वो विपिन चंद्रा की किताब से प्रिपेयर किए थे। और सेलेक्टिवली हम 1947 के बाद का इतिहास जो है वो विपिन चंद्रा की किताब से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसमें मुझे समस्या ये आई थी कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई बहुत अच्छी किताब नहीं मिली थी मिली और बहुत अच्छे रिसोर्स मुझे नहीं मिल पा रहे थे। तो इसलिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री है मैंने मोस्टली जैसे कि हमारा जो पहला टॉपिक है प्रबोधन और उससे रिलेटेड आधुनिक विचार, और उसमें जो है वो हमें कांत और रूसो के बारे में पढ़ना है। तो मुझे लगता है कांत और रूसो के बारे में मुझे बहुत अच्छे कहीं से मिल नहीं रहे थे कि मैं कहाँ से पढूं। तो ऐसे में मैंने जो है गूगल किया उनके बारे में, और यूट्यूब पे जो कांत और रूसो से रिलेटेड वीडियोज़ थे मैंने उसे देखे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मुझे लगता है कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, तो हमें ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि हमें पीएचडी नहीं करनी है इस टॉपिक में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए हैं एनलाइटमेंट पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप एक बार देखिए और फिर उसके हिसाब से आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करिए। और आप ये समझिए कि कांत और रूसो का जो योगदान था उसका योगदान जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफिकल पार्ट हमें कम और हमें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से उसे ज़्यादा देखना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जैसे जो हमारा विश्व युद्ध हो गया, तो मुझे लगता है कि विश्व युद्ध के बाद के जितने टॉपिक्स हैं वो नॉर्मन लॉ की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और मैंने उसी किताब को रेफ़र किया था। तो आप चाहें तो किसी और सोर्स से भी रेफ़र कर सकते हैं,
इन टॉपिक्स की तैयारी के लिए। इसके अलावा जैसे रूसी क्रांति हो गई, चीनी क्रांति हो गई, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं और इनमें से किसी से क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं, तो इस तरह के टॉपिक्स को मुझे लगता है कि हम जैसे जो इग्नू के जो लेक्चर्स हैं उसके थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हम गूगल कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। इसके अलावा ये तो हो गई सिलेबस की बात। सिलेबस कवर करने के अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है ऑप्शनल की तैयारी का, वो है राइटिंग और आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है आपका स्पीड, दूसरा है आपका स्किल। तो आंसर राइटिंग स्किल जो है ऑप्शनल में डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो मुझे लगता है कि आप जो है एक कंफर्ट लेवल से बाहर निकलिए अपने। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला काम ये करना चाहिए जो मैंने किया था, मैंने जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे लगभग मैंने उनको लिखा था। तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि उसको लिखने के बाद से एक तरीके से हम ये समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या डिमांड करता है और हमें किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी अपने ऑप्शनल की तैयारी के लिए। और अगर आपकी और भी कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं उनको एड्रेस करूँ। थैंक यू।